Okay, hello everyone. This is me Kashif Asdani, and in this today video lecture, I am going to teach you the refraction of light through a glass prism. I have not upload the video for a long period of time due to my examination, but in from today onwards, I will upload video daily on to complete the syllabus of science, and afterwards I will upload the video of mathematics to upload the syllabus of to complete the syllabus of mathematics. So let us start with the refraction of light through a glass prism. At first, let us understand that what is the meaning of glass prism. Okay, if you understand the meaning of glass prism, then the 50% topic of the refraction of light through a glass prism will enable you to understand easily. So let us understand firstly that what is a glass prism. A triangular glass prism is an object which is transparent, made of glass, having two triangular ends and three rectangular sides. It means that a triangular glass prism is first a solid shape, and we know that solid shape has three components: length, breadth and height. Okay, so a triangular glass prism is an object which is transparent, made of glass, having two triangular ends and three rectangular ends. If we consider this is a triangular glass slab. This triangular glass slab has two triangular ends and three rectangular faces. Okay, the angle between its opposite faces is called the angle of the prism. Suppose that this is a triangular prism. It has first face here and it has first face over here, and the angle between two faces is called the angle of the prism. So here angle QPR is known as the angle of the prism. In refraction through a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray, but in refraction through a glass prism, the emergent ray is not parallel to the incident ray. It means that when we have studied in the previous lecture in the class in chapter 10, light reflection and refraction. So here I have taught you about that in the refraction through a glass slab, the emergent ray is parallel to the direction of incident ray, but in this case the emergent ray is not parallel to the incident ray because the faces of the triangular glass prism are not parallel to each other, and due to this condition, the emergent ray of a glass prism is not parallel to the incident ray, as I have written it over here. The emergent ray of glass prism is not parallel to the incident ray of light because the opposite faces of the glass prism where refraction take place are not parallel to each other. क्योंकि emergent ray जो होता है ग्लास प्रिज्म का वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होता है, और इंसिडेंट रे का पैरेलल नहीं होने की ही वजह से जो ग्लास प्रिज्म में जो अपोजिट फेस होता है ना, अपोजिट फेस जो पैरेलल नहीं होता है, उसी की वजह से रिफ्रैक्शन में भी यहाँ पे इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होते. एक्चुअली इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन बाय अ सर्टेन एंगल एंड दैट लाइट रेज गेट डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. अब देखिए ग्लास प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है ना, उसमें इमर्जेंट रे जो होता है वो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कुछ सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट करता है. व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स अकर्स both when it enters the prism as well as when it leaves the prism. यानी जब रे ऑफ लाइट, अब इसको हम अच्छे से समझाते हैं. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास PQR एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है. ये क्या PQR हमारे पास एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है. इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में मान लेते हैं कि हमने एक रे बनाया AB. मान लेते हैं AB एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है. AB एक रे ऑफ लाइट है जो PQ को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है. उसके बाद देखिए जैसे पहले हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. अब देखिए, अब ये बात बताइए कि यहाँ पे जो मतलब कि AB लाइट है, ठीक है, AB जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है, हमारा एयर है, ठीक है. और ग्लास प्रिज्म क्या है, हमारा ग्लास है. तो जब एयर से ग्लास में जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है. और फिर एक रे बनेगा BC, और ये BC जब हमारा कहाँ पे बनेगा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा. उसके बाद सॉरी, इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, हम आपको पीछे करके बताते हैं. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है. PQR हमारा एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है. इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में मान लेते हैं एक रे है AB, ठीक है. A और B एक रे है, ठीक है, जो किस पे इंटरसेक्ट करती है, PQ को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है. तब वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर उससे बाहर निकल जाती है. अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल बना देते हैं. अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रे AB है वो एयर मीडियम में था, जो PQR ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में वो ग्लास है, और फिर वो ग्लास से एयर में जाती है. यानी जब रे AB
मतलब कि एयर से ग्लास में जाती है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और ट्रैवल करती है बीसी रे के तौर पे, ठीक है। और जब यही बीसी रे मतलब कि पी आर पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तब वो ग्लास से एयर में जाती है, तब वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है और नॉर्मल से दूर भागती है। अब जो ये नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इमर्जेंट रे है ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रेफ्रैक्टेड रे और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, ठीक है। ये हो गया क्या आपका इमर्जेंट रे। अब देखिए जब लाइट रे एयर से ग्लास में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ठीक है, फिर ग्लास से एयर में गया तो नॉर्मल से दूर भागा, ठीक है। तो यहाँ पे असल में क्या हुआ कि 3 बार रेफ्रैक्शन हुआ। पहला एयर ग्लास इंटरफेस, 2 बार रेफ्रैक्शन हुआ, पहला एयर ग्लास इंटरफेस फिर ग्लास एयर इंटरफेस। और हम जानते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट मतलब या बीम ऑफ लाइट अगर एयर से ग्लास में जाती है तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब ग्लास से एयर में जाती है तब वो कहाँ जाती है, मतलब कि नॉर्मल से दूर भागती है। अब देखिए रे ए बी का जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब रे ए बी को जाना चाहिए था सीधा, ठीक है, और इमर्जेंट रे, ठीक है, और इमर्जेंट रे और मतलब कि जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, हमने क्या किया रे ए बी को पॉइंट ई तक एक्सटेंड कर दिया एक स्ट्रेट लाइन में, और ये इमर्जेंट रे बी सी डी जो है, ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर दिया पीछे, इसको प्रोड्यूस कर दिया ताकि ये ए ई को पॉइंट ओ पे मीट करे। और यही जो एंगल ई ओ ए जो है इसी को कहा जाता है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और यही सबसे मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसमें ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, होता बस कुछ ये है कि जैसे ग्लास प्रिज्म है, इस ग्लास प्रिज्म में अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इस ग्लास प्रिज्म के किसी भी साइड पे, ठीक है, तब वह पहला मतलब कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और जब मतलब कि ग्लास से एयर में जाएगा तब नॉर्मल से दूर भागेगा। अब इसमें क्या होता है कि रे ए बी जो है, जो इंसिडेंट रे है, उसके मतलब कि डायरेक्शन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बी सी जो इमर्जेंट रे उसके डायरेक्शन को थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं ताकि वो ए ई को मतलब कि पॉइंट ओ पर मीट करे, और यही जो एंगल ई ओ डी बनता है इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो याद रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन उस एंगल को कहा जाता है जो एंगल मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और प्रोड्यूसिंग बैक डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और मतलब कि इसमें इमर्जेंट रे जो होता है रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल, इंसिडेंट रे के पैरेलल इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे दो जो अपोजिट फेस है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो हम आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम बता देंगे। तो अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो एक बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है जो मतलब कि लाइट को अगर एक ग्लास प्रिज्म से पास कराया जाएगा तब वो वाइट लाइट 7 कलर्स के बैंड में टूट जाएगा, 7 कलर्स से कलेक्शन में टूट जाएगा, और उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, अ बैंड ऑफ 7, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक है। अ बैंड ऑफ 7 कलर्स formed after refraction, a band of 7 colors formed after refraction of white light passing through a prism, formed after refraction of white light passing through a prism of white light, but after splitting of white light passing through a prism is called स्पेक्ट्रम, ठीक है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है, यानी 7 कलर का जो कलेक्शन होता है ना, ठीक है, जो एक वाइट लाइट के अंदर होता है उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ऐसे मान लेते हैं ये हमारा एक वाइट लाइट है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक वाइट लाइट है, उसका बीम है, ठीक है, तो इस वाइट लाइट में 7 कलर्स होगा, और इस वाइट लाइट में कितना कलर्स होगा, 7 कलर्स होगा, जिसको याद रखने के लिए विबग्योर याद रखा जाता है। विबग्योर में वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो,
बी का मतलब होता है ग्रीन, उसके बाद वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। ठीक है, तो इसी को याद रखा जाता है वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म हम बताएंगे ना, तो जैसे मैंने इस ऑर्डर में लिखा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, याद रखना इसका जस्ट उल्टा हो जाता है।